We'll start the recording session and we'll just jump because you guys are already late 15 minutes. So I'll just create a new, I will just directly call the files from my folder. I'm just pressing Control E. I will send this file to you guys so you can work on the same project. Okay, can you see this image? Yes, sir. Okay, so basically when you start working in this kind of image, what you need to do is the first thing is to remove the background. Whenever you are working in the matte painting, 99% time you are going to remove the sky. That is 100% sure. So to remove the sky is very easy right now. All I need to do is just create a selection around it. So in matte painting. Yeah, matte painting. Whenever you are working in matte painting, the sky is the basic thing. Uh, every matte painter does that. They remove the sky every time. Doesn't matter how dramatic the sky is or how what you say clean the sky is. So why they remove that? It depends on the scene. Say for example, I want to create this scene in like a dusky in the evening shot. So obviously this cloud won't fit for that. So on that occasion, what they do is create a different. They replace the sky with a different image. It makes it more dramatic and everything. For example, if you have seen a 300 movie, they have most of the time they have a very black dark clouds. So it's the theme of the movie. Say when you're playing a war game, you will mostly see the dark clouds. Obviously, if they are shooting a live shot, they won't be having a dark clouds. So to make more feel good to the audience, they have to experience better thing. Yeah. So for the audience, so it should look like the environment is destructive and all, depending on what the theme is. Okay, so to remove this area, you can always press delete button, but I always preferred non-destructive way. So यहाँ पे आके तुम layer mask apply कर दो, and obviously I wanted to remove this area, not this area. So क्या करेंगे इसके लिए? इसको क्या करेंगे? Invert. We'll do an invert. Control I. Yeah. So we'll select the layer, Control I, invert it. Now next thing is that I want to composite some images to this footage, to the main footage. So what I will do, I'll just bring an image for you guys to understand first. Can you see this image? Yes, sir. Yeah. So what I need to do is no, this not. हाँ अभी ये पिलर वाला इमेज दिख रहा है, पिलर वाला ये कार दो ट्रक कार. Yeah. So what I need to do is composite this pillar into this image. Okay, so to start with that, what you need to do is you need to create a vanishing points. I think I already taught you in last semester what is vanishing point, but let's say, so to create a vanishing points in a simple image manually, just go to this layer, line, drag, and just drag. I know okay, the vanishing point is in the center only, so it's not a big rocket science too. Just draw 5-6 whatever lines you want. Once it's done, just merge it. I'm just selecting the layer, selecting the below layer by holding shift button and pressing Control E to merge them. And it's up to you what color you want. I'll make it red because it pops up more. And say if you're drawing the lines and the lines is not thick enough or is too much thick, you can decrease the weight from here. You can just decrease the weight. So if you want little more thickness, increase the weight. If you want very less thickness. But did you tell this only till now? हाँ अभी तक बस मैंने यही बताया. तो ये फिर अलग-अलग लेयर कैसे लिया आपने शेप्स की? ये अच्छा सर लाइन बनाते गए और शेप्स आते गए. बस सी आई हैव टू थिंक ना कि वैनिशिंग पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा. इफ नॉट तो आपको क्या करना है कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कि एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं.
at some point. So I know कि अगर आप follow करोगे इस line को ना, you will get the idea. Say obviously we do not have a very straight line in this image, but एक assume कर लें तो I know कि जो straight line ये है वो somewhere around यहाँ पे bisect कर रही है. They are meeting at this point. Doesn't have to be perfect, but हाँ close enough होना चाहिए. Once you have done this, all you need to do is just select the first layer, last layer, press Ctrl E, merge it, select the colors, whatever colors you like. Red is the best one. So I have created the vanishing point for the first image. Now I will go to the second image. Same idea for this image. Now in this image I can see the straight line, so it will be very easy for me to create the vanishing point. Once I'm done with this, I'll merge all the layers, make this is the red one. Now I have to bring this For merging, you have to select all the layers and then Control E. E, yeah, E for England. Okay, sir. Okay, to merge it, just a second, it got stuck. Okay, so it's very simple. Just select the first layer, hold the shift button. You have to hold the shift button and click the last layer, whichever layer it be, second last in this case, and just press Control E. It will merge it. Okay, once it's done, again I just change the color to red. Now I have to bring this two layer to this canvas. So let me change the screen for you guys so you guys can see it better. Okay, so now I think you can see both the screen, both the window. Yes, sir. Okay, sorry guys. So now what I need to do is just select this two image here and bring this image to this comp. So it's very simple. Just make sure you tear up the window. Tear up the window is very simple. Just drag it outside. Select the both layer and drag it into the previous composition where you want to drag it. Now, before I do anything else, I will just group this layer by pressing Ctrl G on this layer, Ctrl G on this layer. So I'll name this as a main comp, main canvas, and I'll name this just double clicking it as a pillar. Okay, I'll change. If you want to change the color coding, it's up to you. Just to make a good. कोई problem है यहाँ पे? नहीं सर, It's very simple. I just grouped it. सर एक बार सर आपने टीयर डाउन करके यहाँ पे कैसे लाए थे सर, क्योंकि सर उसकी लाइन यहाँ पे कैसे लाया? Okay. I'll show you. It's very simple. All you need to do is ये इस window में popped up है. जैसे इसको drag कर दो बाहर आ जाएगा. Easy? Yes. Okay. Then इसको यहाँ से drag करके इस canvas पे drop कर दो. ये जो layer था ना, इस layer यहाँ से मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इमेज दिख रहा था, इसको बस ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया. ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लेयर्स इसमें आ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे. हाँ मर्ज नहीं होंगे, कॉल हो जाएंगे. मर्ज होना तो फ्लैटन हो जाएगा. So I'll just group this, bring the layer up, rename it. To rename it, just double click, it will rename the layer. Okay. Okay, I'll come back to this layer. Now, next thing, why did I group this? So I grouped this because I want my layer to have the if I'm decreasing the opacity for the say this layer, I want the same effect to be applied to this layer also. So while when you group this layer, if I drop the opacity, both layer will have the same influence. It will have the same effects. So if I'm dropping the opacity, or say if I'm pressing the if I select the group layer and press Ctrl T, you can see the both layer are moving. Now as you can see in this image, the vanishing point is here, but for this image the vanishing point is somewhere around there. So what you need to do is for the second image, दूसरे image के लिए जैसे आप group बना लो, उसको कुछ नहीं करना है, just press Ctrl T, थोड़ी सी opacity drop कर लेना, group की, ना कि layers की, group की कर लेना, Ctrl T press करना,
एंड दिख रहा है जब मैं इन दोनों वैनिसिंग पॉइंट को मैच करा रहा हूँ तो ग्रुप की करनी है से किसकी करनी है? ग्रुप की करनी है, ग्रुप की। उससे फायदा ये होगा ना कि जो ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर दोनों की ओपेसिटी एक साथ ड्रॉप होगी। अगर मैं ग्रुप नहीं करता तो पहले मेरे को इसकी ओपेसिटी घटानी पड़ती, फिर इसकी ओपेसिटी घटानी पड़ती, फिर दोबारा से इसकी ओपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती, फिर दोबारा से इसकी ओपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती, तो मेरे को डबल काम करना पड़ता है। मैंने ग्रुप बना लिया तो मैं इसी पे सारा चीज वर्क आउट कर सकता हूँ, सेम इफेक्ट दोनों लेयर पे अप्लाई होगा। मेक सेंस? अच्छा ये बताओ, ये दिख रहा है जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों, एक वैनिसिंग पॉइंट यहाँ पे, एक वैनिसिंग यहाँ पे, दिख रहा है? Yes, sir. Yes. यस सो आपको क्या करना है, बस ड्रैग करके इसके सेंटर पे लाके पुट अप कर देना है। वंस यू पुट अप दिस, प्रेस एंटर। मेरे को अब इस लेयर की वैनिसिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। आई विल इंक्रीज द ओपेसिटी नाउ। नाउ इन दिस केस व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू प्रिजर्व द पिलर एरिया। नाउ आई विल बी गोइंग लिटिल फास्ट, बट जब आप लोग काम कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर यू टेक योर टाइम। प्रेस कंट्रोल इंटर, एंड आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया, सो आई जस्ट, है ना, थोड़ा सा जितना ज्यादा डिटेल बच जाए उतना बेटर है। सो अगेन आई कंट्रोल इंटर, आई कम हियर, अप्लाई लेयर मास्क। दिख रहा है? आप देख सकते हो पिलर ऑटोमेटिकली उस रोड के अकॉर्डिंगली पुट अप हो गया। यस ओके, सो थोड़ा सा अगर मिसमैच अगर हल्का फुल्का हुआ दैट्स फाइन, आप उसको हल्का फुल्का इधर उधर चेंज कर सकते हैं, दैट्स ओके। ना ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श लाइन दिख रहा है, सो इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द ब्रश टूल, जैसे हमने लास्ट टाइम लेयर मास्क से किया था, एंड व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पेंट अराउंड दिस, है ना, ताकि वो हार्श लाइट चली जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? Yes, sir. So this is how you blend the layer. थोड़ा सा ब्रश साइज लगे कि चीजें वहीं पे इंटीग्रेटेड है रादर देन कि कहीं और है। सर लेयर मास्क करके आप लाए उसको सब पिलर पे? नहीं, हाँ इसको, अरे नहीं नहीं, मैंने इसको क्या किया, पेन टूल, मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं वीडियो आप देख लेना। मैंने क्या किया था, जस्ट पेन टूल से इसको सिलेक्शन बनाया, लास्ट सेमेस्टर था ना ये, जस्ट इस तरह से सिलेक्शन बनाया। आई विल शो यू अगेन यार। सो इट वाज लाइक दिस। इस सिलेक्शन बनाने के लिए आई विल शो यू, ये पेन टूल चलाने आता है ना, लास्ट सेमेस्टर बताया था। यस सर। या सो जस्ट ड्रॉ अ पेन टूल, जस्ट एक रफ सिलेक्शन बना लो ताकि ये एरिया उसके अंदर आ जाए। वंस यू डन प्रेस कंट्रोल इंटर, उससे क्या होगा, सिलेक्शन बन जाएगा। दिख रहा है सिलेक्शन? यस। देन हिट दिस लेयर मास्क। लेयर मास्क करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी सिलेक्शन के अंदर था वो कॉल हो जाए, जो उससे बाहर था वो हट जाएगा। वंस यू आर डन, यस टेक द ब्रश टूल एंड देन जस्ट ना टेक योर टाइम। इसके लिए थोड़ा सा जल्दी, मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैंने बता दिया है। एंड थोड़ा सा फिर आप देख सकते हो कि इस एरिया में भी यहाँ पे दिख रहा है, सो आपको ये एरिया क्लीन करना पड़ेगा। दिख रहा है ना? यस सर। ये जिगजैग जो है आपको हटाना पड़ेगा। कंट्रोल इंटर, ब्रश एंड देन क्लीन इट। आ गया? सो मेक सेंस? सो ठीक है, सो एक चीज हमने कंपोजिट कर दिया। लेट्स गो टू द अनदर थिंग व्हिच इज द नेक्स्ट इमेज, व्हिच इज दिस रेल ट्रैक। नाउ आई वांट टू कंपोजिट दिस रेल ट्रैक एंड दिस ट्री देयर, है ना? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये कर्व है, बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अगेन जस्ट ड्रैग दिस लाइंस, ओके। आई जस्ट फॉलोड दिस लाइन। यहाँ पे इसी इमेज में लाइन थे तो मैंने इसको दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना, उसके बाद इजी हो जाता है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट so once you done, again same idea, tear down the window, drag and drop this here, group the layer। ग्रुप कैसे कर रहे हैं, सिंपल ड्रैग करके ये फोल्डर बना हुआ है नीचे, उसके ऊपर ड्रॉप कर दो, या कंट्रोल जी इज द शॉर्टकट की। आई विल नेम दिस एज ट्रैक, रेल ट्रैक, व्हाटएवर यू नेम। इसको मैं ड्रैग करके ग्रुप से बाहर ला रहा हूँ। आप देख सकते हो जब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये क्या हो गया, इस ग्रुप के अंदर ही चला गया था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउटसाइड दिस ग्रुप। आई विल चेंज द कलर,
तो याद रखना, अगर फोल्डर उसके अंदर ही बन जाए कोई इशू नहीं है, अगर इसके अंदर ही क्रिएट हो गया जस्ट उसको ड्रैग करके बाहर कर देना। शॉर्टकट की इज कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, आप इससे मूव कर सकते हो अगर माउस से नहीं हो रहा है तो। ओके, सो वंस आई एम डन विद दिस लेयर, now I have to composite this area. So again before compositing मेरे को क्या करना है कि नीचे वाले vanishing point से इसको मैच कराना है। I have to match this vanishing point line to this line. So क्या करेंगे अगेन, सबसे पहले ग्रुप लेयर की opacity को घटा देंगे ताकि दोनों लेयर दिखे। Then we'll press Ctrl T and drag करके जो नया वाला इमेज हमने लाया है उसको प्रीवियस वाले इमेज के vanishing point के ऊपर रख देंगे। As simple as it is. दिख रहा है? Yes sir. Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No sir. Okay. So once you have done this, इस लेयर की वैनिशिंग पॉइंट, इस लेयर की वैनिशिंग पॉइंट मैं ऑफ कर रहा हूँ, वापस मैं इसकी ऑपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। I'll take the pen tool and again I'm just going a very fast way. It's up to you कि कौन सा एरिया आप रखना चाहते हैं। Just don't want this side railing to be there. Control Enter. I just want this area to be there. So मैं इस इमेज पे आऊंगा, again I will just apply layer mask. देखा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपोजिट हो गया। इफ आई इनेबल द पिलर लेयर वो उसके साथ दिखेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू, कोई भी इमेज अगर किसी भी इमेज पे आप काम कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू कंपोजिट एनी इमेज टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ट्राई टू क्रिएट अ वैनिशिंग पॉइंट फॉर बोथ द इमेज। उसको ड्रैग करके ले, आपका इमेज हमेशा परफेक्टली पर्सपेक्टिव में एटलीस्ट सेट हो जाएगा। अगर फिर भी क्या कहते हैं कुछ परफेक्ट अगर इमेज कलर ग्रेडिंग नहीं दिख रहा है बट आपका इमेज हमेशा इंटीग्रेटेड दिखेगा। सो जस्ट ट्राई टू फिक्स सम ऑफ दिस पॉइंट। मेक श्योर कि द पिलर द ट्रैक लेयर इज बिलो द पिलर लेयर, अगर ऊपर रहा तो ये इसके ऊपर दिखने लगेगा। सो जस्ट मेक श्योर इस चीज का याद रखना। ओके, वंस वी हैव डन, नाउ प्रॉब्लम क्या दिख रहा है अब यहाँ पे? सेकंड साइड सर वो ब्लैंक है। हाँ नहीं, हाँ वो तो है ही, बट स्काई का एक इश्यू दिख रहा है ट्रैक वाले लेयर पे। I want to remove the sky. हमने इस बैकग्राउंड से स्काई हटाया बट इसका स्काई अभी भी है। सो इस स्काई को कैसे हटाएंगे? जैसे सर लास्ट क्लास में हटाया, लास्ट क्लास में चैनल। हाँ, सो विल गो टू द चैनल जाके चेक रेड ग्रीन ब्लू। आई नो ब्लू, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम। सो आई जस्ट डुप्लीकेट ब्लू, फिर विल गो टू इमेज एडजस्टमेंट लेबल्स, पुश द व्हाइट एरिया, पुश द ब्लैक एरिया, डन। नाउ ये जो ट्रैक है राइट नाउ, अगर मैं यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये ट्रैक का ये एरिया भी कंक्रीट जो है ना वो गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज व्हाइट। तो मेरे को क्या मेरे को क्या ट्राई करना है कि ये एरिया को भी ब्लैक करना है। आई विल शो यू। सो से कि मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करके, एंड इफ आई जस्ट गो बैक हियर एंड मैं स्काई हटाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, सॉरी, तो आप देख सकते हो, ये देख लो, ये इस एरिया से भी पिक्सल को हटा दिया, देख रहे हैं? सो आई डोंट वांट दैट, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। आई वांट कि बस स्काई हटे। चलो गो बैक टू द चैनल अगेन, आई सेलेक्ट द ब्लू चैनल एंड मेरे को क्या करना है, एरिया को ब्लैक करना है। सो वेरी इजी, अगेन आई टेक द पेन टूल, ड्रॉ अराउंड दिस एरिया, ओके। वंस आई हैव डन विद दिस, क्या करेंगे, कौन से कलर से उसको पेंट करेंगे? जब कहीं, हाँ ब्लैक कलर से ही पेंट करेंगे बिकॉज अपने को इसको रखना है राइट नाउ, बाद में हम लोग इन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई जस्ट पेंट विद द ब्लैक, थोड़ा सा यहाँ बच गया, सो आई कैन पेंट दिस एरिया। और यहाँ पेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या ये गैप है, ट्रीज के गैप्स हैं, होल्स हैं। सो वंस आई हैव डन विद दिस, आई विल प्रेस कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, गो बैक टू द लेयर, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ब्रश से, ऑटोमेटिकली स्काई वाला एरिया जब आप पेंट करोगे तो हट जाएगा। देख रहे हैं, ब्लैक कलर से मैंने ब्रश लिया है, आई टुक अ ब्रश, लेयर मास्क पे जाके जस्ट ब्लैक कलर से इसको पेंट कर दिया। मेक सेंस?
Yes. Yes. क्या हो गया, कोई पूछ रहा था? No, sir. Nothing. So final चीज के लिए यहाँ पे what I will do is just bring the building here, press enter, इसको नीचे सबसे नीचे लेके आ जाएंगे and I'll just composite it here. And this is just basic idea, इसमें और भी बहुत सारे काम लगेंगे, फिर इस बिल्डिंग से मैंने स्काई हटाया था, बट फिलहाल के लिए दिस इज द बेसिक अप्रोच यू नीड टू डू ना। यहाँ पे कुछ ट्रीज देख रहे हो कि कट गए हैं, वो रीजन इसलिए कट गए हैं क्योंकि इसका जो पिक्सल ही है ना, इफ यू सी इफ आई डिसेबल, ये पिक्सल ही ऐसा है इसका, तो इट विल बी इट्स अ वेरी स्मॉल इमेज, तो थोड़ा सा डेटा जाएगा। सो बट अगेन से कि आपको ये एरिया इस तरह से नहीं दिखाना है, सो यू कैन टेक द ब्रश एंड ब्लैक कलर से जो एरिया को नहीं चाहिए आप पेंट करके हटा सकते हो। ओके Yes, sir. बन जाएगा ये। Yes, sir. Okay, so I'll stop